Okay, first of all, thank you so much, ma'am, for the introduction. And hello, everyone. This is Ria Buat from Spider Software Mumbai head office. Today, we're going to see how chart patterns could help us in our day-to-day trading. So I'll just quickly turn off my camera and we'll proceed with the presentation. Okay. So the topic for today will be powerful price action patterns every trader should master. So basically, the patterns which are formed using the Fibonacci levels. We will be talking about that today. So I'll just quickly discuss the flow of the PPT. Okay. And so the flow of the webinar will be, we'll get a quick introduction of how the chart patterns are formed and what are chart patterns. And we'll also discuss the various types of chart patterns. And then we'll discuss the how we can take an entry or an exit, or we can create a stop loss in that. And after that, we'll get a conclusion on what are the confirmations we can get to get a good target, basically. Okay. So the next slide would be the introduction. So this would be the introduction, that how chart patterns are formed. Basically, it are formed. They are formed on the basis of demand and supply of the traders. So if we see the triangles, some harmonic patterns are also formed. जैसे कि हम अगर बात करें हार्मोनिक पैटर्न्स की, तो दो ट्रायंगल्स होते हैं, देन फ्लैग्स भी होते हैं. वैसे ही डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स भी होते हैं, जो हमने देखे हैं कई बार पैटर्न फॉर्म हुए हैं मार्केट में. एंड देन वैसे ही अगर हम देखें तो वहां पे एक कंसोलिडेशन भी हुआ है, एंड देन वो कंसोलिडेशन के बाद जब भी ब्रेकआउट मिलता है तो फिर एक अच्छा रिवर्सल देख सकते हैं या फिर एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन देख सकते हैं वहां पे. So that is what we are going to discuss over here, and we'll also see how we can scan the harmonic patterns through Spider software. Okay, so before we move on to the next slide, I'll just quickly launch a poll on which chart patterns are you familiar with. Okay, so I request you all to answer the poll so you can just get an idea how basically, like, which patterns are you familiar with and how you take a trade in those. Okay, so I request all of you to just answer the poll. Okay, so as I can see that majority, that is the 60, almost 60% of people have voted for double top and double bottom formation. So yeah, I can see that because that pattern is most noticeable during the market, and ABCD pattern is not that familiar or it is not that noticeable. So range bound is also the second one, as I can see that most people see the consolidation in the market, and then whenever we get a breakout of the support or resistance zone, we take a trade. So I'll just move on to the next slide. For that, we'll cover how these chart patterns are formed. So these are formed because the price is reacting to the buying or selling pressure through the bulls or the bears. Okay, like उसके basis पे वो price move करेगा, and then एक ABCD pattern form होगा या फिर एक consolidation होगा वहां पे, and then अगर एक strong volume मिलता है then उसके बाद एक breakout भी मिल सकता है, and then उसके बाद एक strong upside movement expect कर सकते हैं. ठीक है, एंड देन इट इज ऑल्सो शेप्ड बाय द ट्रेडर साइकोलॉजी, जैसे कि फियर हो गया, ग्रीड हो गया. अब इफ आई से अबाउट फियर, देन इफ पीपल थिंक कि हाँ अभी मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है या फिर इसके बाद नहीं ऊपर जाएगा, बट देन स्टिल मार्केट gives a good momentum if we see. So that is it. That is that about. After that, we have the key levels, which are the support resistance levels. बेसिकली जैसे हमने बात किया कि रेंज बाउंड के बारे में, रेंज बाउंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड देन उसका ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे. सिमिलरली ट्रेंड लाइंस में अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइंस में भी जैसे कि एबीसीडी पैटर्न फॉर्म होता है, तो फिर एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल जाता है उसे, तो वो जब भी ब्रेक हो रहा है तो फिर एक अच्छा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं.
सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें तो फिबोनाची लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ चार्ट पैटर्न्स ओवर हियर। इफ आई कैन सी कि जो एबीसीडी पैटर्न होता है जैसे और या फिर बुलिश फ्लैग हो गया या फिर एक बेरिश फ्लैग हो गया, उसमें एबीसीडी पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। विल जस्ट सी दैट हाउ एबीसीडी पैटर्न्स एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं या फिर रिट्रेसमेंट जोन के बेसिस पे भी हम एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं उसमें। सो वील जस्ट सी दैट in the next slide. Okay, so these are the types of chart patterns we will cover today. So ABCD है, ABCD में अगर हम देखें तो उसमें हमें एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। वो एक दो मूव्स के अकॉर्डिंग होता है जहाँ पे ए और बी का जो मूव है एंड देन उसका जो सी और डी मूव है वो सिमिलर होता है। एंड सिमिलरली वहां पे देखे तो डबल टॉप एंड डबल बॉटम फॉर्मेशन भी है, जैसे कि आई हैव सीन जैसे 60% ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग इन डबल टॉप एंड डबल बॉटम फॉर्मेशन। लाइक जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करा या फिर नेकलाइन ब्रेक करे देन यू टेक अ ट्रेड एंड देन एक्सपेक्ट अ गुड मूवमेंट। सिमिलरली रेंज बाउंड हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, जब मार्केट साइडवेज मूव कर रहा है उसके बाद आप हाई या फिर लो उसका मार्क करके एक अच्छा मूवमेंट क्रिएट कर रहे हो वहां पे। एंड देन बुलिश और बेरिश फ्लैग हो गया। इसमें होता है कि बेसिकली एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है ये रादर देन अ रिवर्सल पैटर्न। जैसे कि हम देखें ये एबीसीडी हो गया, ये सब एक रिवर्सल पैटर्न रिप्रेजेंट करते हैं। बेरिश फ्लैग या बुलिश फ्लैग देखे तो वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म करते हैं, ठीक है। सो विल जस्ट क्विकली गेट इनटू द नेक्स्ट स्लाइड which is about the ABCD pattern. Okay, so before we get into the pattern, I'll just quickly show you how we can scan the patterns with the help of Spider software. So I'll just go to our software and then I can see over here, ये मेरा एक fresh new chart है and then यहाँ पे एक query section है, उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे हार्मोनिक एंड पैटर्न स्कैनर मिल जाता है हमें। उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप होगा। तो इसमें हम हमारे हिसाब से फिल्टर रेट कंडीशंस लाइक जो भी फिल्टर कंडीशंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम ग्रुप, अगर हमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप पे रन करना है तो उस पर्टिकुलर ग्रुप पे रन करेंगे या तो एंटायर एनएससी पे भी कर सकते हैं इफ वी वांट द बीई एंड एसएमई स्टॉक्स आल्सो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं, एक इंट्राडे मिल जाता है, वीकली टाइम फ्रेम से भी मिल जाता है, वीक डेली पे भी मिल जाता है। सो इफ आई सी कि अगर मुझे डेली पे रन करना है, ठीक है, देन my swing percentage can be 3% over here, and if I am running it on the intraday time frame it can be around 0.5%, and similarly अगर मुझे weekly time frame पे scan करने patterns तो मैं इसका 5% का swing consider करूंगी, ठीक है। आई जस्ट रन इट ऑन द डेली टाइम फ्रेम फॉर नाउ। उसके बाद यहाँ पे सर्च फॉर में हम चार्ट पैटर्न सर्च करेंगे बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर दैट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पे मैं लास्ट एन बार्स में 10 डाल देती हूँ। सो हमें लास्ट 10 डेज में कहाँ कहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है वो मिल जाएगा, ठीक है। एंड हम एक ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं टोटल मार्केट का। ओके, अब हम इसे रन करते हैं एंड आई कैन सी कि यहाँ पे मुझे एक्सचेंज मिल गया विच इज एनएससी। टोटल मार्केट पे रन कर रही हूँ तो स्क्रिप्ट कोड मिल जा रहा है, स्क्रिप्ट नेम, कौन से पीरियड में ये मैंने रन किया विच इज डेली टाइम फ्रेम। सिमिलरली जो मेरा स्विंग परसेंटेज है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड पैटर्न्स जो फॉर्म हो रहे हैं उनके नेम्स दिख रहे हैं। लास्ट टाइम कब वो फॉर्म हुए थे वो डेट मुझे मिल जाएगा एंड देन उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पे ये एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलूँ वैसे मुझे यहाँ पे फिल्टर करना है तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगी पैटर्न्स का जो टैब है उस पे, तो यहाँ पे मुझे पैटर्न्स मिल जाएंगे जो बेसिकली एबीसीडी पैटर्न्स है। वो एक मुझे रेंज में मिल जाएंगे, लाइन में मिल जाएंगे बेसिकली, जो असेंडिंग बुलिश फ्लैग है, देन डबल बॉटम है या डबल टॉप है, वो सब मुझे यहाँ पे इजीली फिगर आउट कर सकती हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे एबीसीडी पैटर्न के यहाँ पे मुझे फॉर्मेशंस दिख रहे हैं बहुत सारे। इफ आई सी कि यहाँ पे जस्ट स्टाइल में आई कैन सी अ बुलिश फॉर्मेशन ओवर हियर बिकॉज
this pattern is in the blue color, so I can easily figure it out कि ये एक bullish pattern है. Similarly, अगर मैं कोई और chart में देखूं, then I can figure out the pattern, like the bullish, is it a bullish pattern or is it a bearish pattern, based on the color itself. So as I can see Gillette में, I can see a good bullish formation over here, and जब भी इसने एक breakout दिया from this zone, it has given a good movement, and it has covered my targets also. So this is how you can take, you can basically scan in, from Spider software. So अगर मैं, if I go back to my PPT, यहाँ पे मुझे दिख सकता है कि A to B, मतलब जो भी यहाँ पे एंट्री और स्टॉप लॉस और टारगेट्स कैसे सेट करना है वो हम देख लेंगे एक बार. अब यहाँ पे A to B का जो मूवमेंट है, जैसे कि यहाँ से प्राइस स्टार्ट हो रहा है, जैसे हम अगर यहाँ पे देखें जिलेट में, तो यहाँ से वो पैटर्न ने फॉर्मेशन चालू किया एट दिस पॉइंट, ठीक है. उसके बाद उसने यहाँ पे एक सेकेंड पॉइंट क्रिएट किया, उसके बाद उसने यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट क्रिएट किया विच इज द सी पॉइंट, जो फर्स्ट A to B का एक 6.1% का रिट्रेसमेंट दिया उसने, या फिर 78% का रिट्रेसमेंट देके उसने वापस एक स्विंग पुल बैक लिया, ठीक है. सो यहाँ पे एट द एंड एक हमारा जो डी पॉइंट है, जो कंफर्मेशन हुआ है, वो यहाँ पे इस कैंडल पे फॉर्म हुआ है बेसिकली. एंड देन उसके बाद हमें जो ब्रेकआउट मिला यहाँ पे, उसके बाद एक गुड मूवमेंट हमने देखा है. और यहाँ पे अगर हम टारगेट्स की बात करें, तो हम ये जो सी पॉइंट है वो हम एक फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, एंड सिमिलरली हमारा ये जो डी पॉइंट है वो लाइक ए पॉइंट है, वो हम एक सेकेंड टारगेट रख सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू कैन लाइक डिफाइन योर टारगेट्स. एंड सिमिलरली अगर आप स्टॉप लॉस की बात करो, तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लाइक डी पॉइंट जो हमारा कंप्लीशन पॉइंट है उसके जस्ट नीचे रख सकते हो, या फिर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप अपने टारगेट्स यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है. वैसे ही हम एक बुलिश बेरिश फॉर्मेशन देख लेते हैं एबीसीडी का. अब यहाँ पे हमने देखने मिल रहा है एक एबीसीडी का ऑरेंज पैटर्न फॉर्मेशन है, दैट इज दिस इज अ बेरिश फॉर्मेशन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब भी उसने ये कंप्लीट किया, so this is the A point, this is the B point, this is the C point and this is the D point, ठीक है. इसके बाद यहाँ पे कंप्लीट किया, उसके बाद उसने इसके लो के नीचे एक क्लोजिंग दी, एंड उसके बाद एक गुड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, एंड दिस कुड बी योर फर्स्ट टारगेट एंड दिस कुड बी योर सेकंड टारगेट. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन योर टारगेट्स आल्सो विद द हेल्प ऑफ दीज पैटर्न्स. सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो यही हमने मेंशन किया है यहाँ पे कि एंट्री हमें जो लेना है वो आफ्टर डी, लाइक एक डी पॉइंट पे लेना है आफ्टर अ गुड कंफर्मेशन. एंड कंफर्मेशन कुड बी एनीथिंग, लाइक इफ यू आर यूजिंग योर पर्टिकुलर सेटअप्स और योर पर्टिकुलर इंडिकेटर्स, जैसे कि RSI हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, अगर उसमें भी आपको एक कंफर्मेशन मिल रहा है, एक सिग्नल मिल रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली इसमें ट्रेड ले सकते हो. एंड यहाँ पे आप अपने टारगेट पॉइंट्स एंड स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ABCD पैटर्न, ठीक है. सो डज एनीवन हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द ABCD पैटर्न? If not, then I'll just quickly move to the next pattern over here, which is double top and double bottom. Please explain again. Okay, I'll just quickly explain it again. I'll go to my Spider software and I'll take a bullish pattern for now. Okay. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक ABCD फॉर्मेशन हमें दिख रहा है, एक ब्लू कलर का पैटर्न है, बेसिकली अ बुलिश पैटर्न. तो यहाँ पे वो पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ एट दिस पॉइंट, एट दिस कैंडल. उसके बाद प्राइस ने एक मूवमेंट दिया, दिस कुड बी आवर B पॉइंट, ठीक है. उसके बाद प्राइस ने एक पुल बैक लिया यहाँ से, एंड देन उसने वापस एक डाउन साइड मूव दिया है. एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये A to B हो गया, एंड देन ये C to D हो गया. सो A और ABCD पैटर्न में द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो A और B का लेंथ है, दैट शुड बी सिमिलर टू द C एंड D लेंथ. तो बेसिकली यहाँ पे आपको लाइक वो मेजर करने की जरूरत नहीं है. स्पाइडर सॉफ्टवेयर में आपको ये डायरेक्टली स्कैन करके मिल जाएगा इफ इट इज सिमिलर और नॉट, ठीक है. एंड देन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मूव है वो इस पर्टिकुलर मूव का A to B मूव का एक
61% का रिट्रेसमेंट देके उसने एक डाउनसाइड मूव लिया है. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट ओवर हियर. आफ्टर दैट उसने एक अच्छा मूवमेंट दिया है एंड देन सिमिलरली यहाँ पे एक अप एग्जिट बोलो या फिर टारगेट्स बोलो तो फिर आप ये टारगेट रख सकते हो ऑफ दिस पॉइंट एंड ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है. Yes, I can see a question as is ABCD pattern different from harmonic pattern? Yes, it is different from harmonic pattern because if we see harmonic patterns, there are two triangles formed and which are differently formed from the ABCD pattern. Like the ratios, the Fibonacci levels are entirely different from the ABCD pattern. So it is different from that. This pattern in last 1 or 2 bars. Please show an example of this pattern in last 1 or 2 bars. Okay. I'll just quickly run this in the last 2 bars. And I can see no ABCD formation over here. I'll just increase the number of bars. Okay. I can see that in BSOP, I have a bearish formation. Okay. So which is formed 5 days prior from now. And in HSCL also I have seen a bearish formation. I can see majorly bearish formations only in the last few, like 5 days. So if I just go back in the chart, if I increase the number of N bars, I can see bullish formations over here. Okay. So currently there are no bullish formations as such. अगर हम देखें ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में यहाँ पे एक बुलिश फॉर्मेशन हुआ है एंड देन उसने फर्स्ट टारगेट जो है वो एक बहुत इजीली लाइक यहाँ पे हिट कर लिया है एंड देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड टारगेट एंड देन वो भी यहाँ पे कवर हो गया है. सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड इन इन ABCD पैटर्न्स. चला जाएगा इफ यू. ओके. सो I think the ABCD pattern is clear to all. So I'll just move to the next pattern, which is double top and double bottom. So यहाँ पे अगर हम देखें तो एक formation होता है जहाँ पे price is hitting the particular level twice, but it is not giving a breakout of that level. Like वहाँ पे जाके वो sustain कर रहा है, वहाँ से hit करके वो वापस रिटेस्ट करके वापस नीचे आ रहा है बट इज नॉट गिविंग अ ब्रेकअप. सो वो एक जोन वहां पे क्रिएट हो जाता है. ठीक है. एंड अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो डबल टॉप है, ये जो फॉर्मेशन है, यहाँ पे हमारा ये एक नेकलाइन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे उसने हिट किया था. ठीक है. अगर हम यहाँ पे देखें हमारे स्पाइडर में, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्विकली सर्च करती हूँ डबल टॉप. ओके. तो यहाँ पे मुझे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन देखने मिल रहा है. ठीक है. अब अगर मैं इनका ट्रेड्स का बात करूं, सो बेसिकली यहाँ पे आप 2 तरीके से ट्रेड्स ले सकते हो. ठीक है. विच इज कि यहाँ पे 2 बार उसने हिट किया एंड देन इट हैज रीटेस्टेड द सेम लेवल ट्वाइस. तो जब भी ये लेवल के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिल रहा है विथ अ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं बेसिकली. एंड द अदर पैटर्न वुड बी, द अदर वे वुड बी कि जब भी लाइक ये रिटेस्ट कर रहा है. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक अच्छा अगर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूँ आर लेके, या आई जस्ट ऐड प्राइस रिट्रेसमेंट. ओके. फ्रॉम दिस स्विंग हाई टू दिस स्विंग लो. जस्ट अ मिनट. Price retracement to this swing high and this low. Okay. So as you can see कि यहाँ पे मैंने एक retracement draw कर लिया है with this swing. So basically I can see कि यहाँ पे price has
like retraced from the 50 level itself over here, from this 50% zone, एंड देन उसके बाद उसने एक डाउनफॉल दिया है. सो वी कैन एक्सपेक्ट जब भी ये जो हमारा लाइक लेवल है जहाँ पे प्राइस ने रिट्रेस किया था पहले, वो जब भी ब्रेक कर रहा है, उसके बाद आप एक गुड जोन एक्सपेक्ट कर सकते हो. इफ आई गिव एग्जांपल्स अबाउट दिस पैटर्न, आई जस्ट क्विकली मूव and I can see Jubilant Pharma over here. If I just click see, and open the chart. Okay. So I can see a double bottom formation over here. If I calculate this retracement at this point, I'll just take the retracement tool. Okay, I'll calculate. I'll take the swing high. I'll take this swing, this candles. I'll take this high, this low. So over here, what I can see is price ने multiple times यहाँ पे जो हमारा golden ratio है, which is 61.80, उसको रिट्रेस करने का कोशिश किया, एंड देन वहां से उसने वापस एक लाइक रिटेस्ट करके उस लेवल को एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया. सो दिस इज हाउ यू कैन टेक अ ट्रेड. इधर इफ अगर आप एक बाइंग जोन के लिए देख रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे जब भी ये कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उसके बाद आप एक ट्रेड ले सकते थे. तो वहां पे एक आपको ये दो कैंडल्स में एक अच्छा मूवमेंट मिल जाता. उसके बाद अगर आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो जब भी विल जस्ट वेट कि जब भी ये एक पैटर्न कंप्लीट होता है या फिर यहाँ पे ये जोन क्रिएट हो जा रहा है सेलिंग साइड का, तो यहाँ पे हम एक डाउन साइड एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं डबल बॉटम में. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं डबल टॉप का बात करूं, तो यहाँ पे हम कुछ डबल टॉप फॉर्मेशंस भी देख लेते हैं. ठीक है. आई जस्ट क्विकली रिमूव दिस लाइंस. ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो डबल टॉप फॉर्मेशन हमें दिख रहा है. यहाँ पे इस लेवल को प्राइस ने रिटेस्ट करके वापस एक डाउनसाइड मूव दिया है. अच्छा. ठीक है. अब अगर मुझे यहाँ पे एक सेलिंग साइड में एंट्री देखना है, तो जब भी ये एक कैंडल है जहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद हम एक एंट्री ले सकते थे. ठीक है. अगर एक अच्छा डाउनसाइड मूव दिख रहा है, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन दिख रही है, उसके बाद हम एक मूव ले सकते थे एंट्री, एंड देन हम एक डाउनसाइड ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं. अब अगर आपको एक लाइक बाइंग पोजीशन इसमें चाहिए, तो हम जस्ट यहाँ पे इसका रिट्रेसमेंट वैल्यूज देख लेंगे. आई जस्ट टाइप आर, एंड यहाँ पे इसका स्विंग लो ले लेते हैं, एंड इसका स्विंग हाई, एंड एंटर. तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 78.60 का लेवल है, वहां से प्राइस ने रिट्रेस किया है. प्राइस हैज गिवन अ मूवमेंट, एंड देन यहाँ पे रिट्रेस करके उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट हुई है जिसने 61 लेवल का क्रॉसिंग दिया है, एंड देन एक अपसाइड मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रहा है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन टेक अ ट्रेड इन डबल टॉप एंड डबल बॉटम. सो दीज आर द टू वेज बेसिकली. ओके. सो इफ मुझे रिसेंट एग्जांपल देखना हो, मैं जस्ट यहाँ पे 2 बार्स कर देती हूँ, एंड आई कैन सी अ डबल बॉटम फॉर्मेशन ओवर हियर. तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ रिसेंटली जेएसडब्ल्यू एनर्जी में. उसके बाद प्राइस ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है, एंड देन अभी वो कहीं ना कहीं उसे वापस रिट्रेस कर रहा है, एंड देन एक डाउनसाइड मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर मैं इसका भी परसेंटेज वैल्यूज निकालू, इसका हाई स्विंग हाई एंड इसका स्विंग लो लेके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 78 का जो हमारा लेवल था, ठीक है, वहां से प्राइस ने रिट्रेस किया है, एंड देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ गुड डाउनसाइड मूव ओवर. सो जब भी प्राइस इफ आई से कि यहाँ पे भी अगर ये लेवल है जहां से प्राइस ने रिट्रेस किया है, तो ये लेवल को भी हम एक इम्पोर्टेंस दे सकते हैं कि जैसे भी ये लेवल ब्रेक हो रहा है, उसके बाद भी आप ट्रेड ले सकते हो. या तो अगर हम देखें
अभी भी आप ट्रेड ले सकते हो एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड डाउनसाइड मूवमेंट ओवर हियर। ठीक है। अब अगर हम टारगेट्स का बात करें तो जो भी लाइक ये डबल टॉप या डबल बॉटम का हाइट अगर आप देखोगे जितने पॉइंट्स का हाइट होगा ना वही सेम पॉइंट्स का या फिर उसका 50% भी आप टारगेट रख सकते हो। दैट कुड बी ऑल्सो गुड टारगेट इफ यू सी। ठीक है। एंड स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे अपसाइड मूव के लिए देख रहे हो तो जस्ट बिलो द डबल टॉप या डबल बॉटम यहाँ पे आप स्टॉप लॉस एक रख सकते हो, या तो फिर अगर आप डाउन साइड के लिए देख रहे हो तो आपका ये एक स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। सो आई जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द पीपीटी। सो जो हमने अभी लाइक डिस्कस किया वही हम यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी में भी यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ, उसने प्राइस ने रिट्रेस किया यहाँ पे 61 के लेवल पे एंड देन एक अपसाइड मूवमेंट दिया जो अभी भी लाइक सस्टेन कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम जुबलिन फार्मा में देखें तो यहाँ से प्राइस ने अपसाइड मूवमेंट दिया जो हमने देखा लाइक चार्ट में जाके एंड देन यहाँ से एट दिस पॉइंट उसने एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया, एक अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट है जिसने सस्टेन भी किया। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक अ ट्रेड इन डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न। अब इसके बाद इफ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैटर्न दैट वुड बी रेंज बाउंड पैटर्न। ओके। सो रेंज बाउंड पैटर्न आर मेजरली कंसोलिडेशन ही हो जाता है, बट कंसोलिडेशन में भी ट्रेड्स कैसे लेना है दैट इज हाउ व्हाट यू शुड नो बी। ठीक है। इसमें भी हमें दो तरीके के ट्रेड्स मिल सकते हैं इफ वी सी। अब यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो नहीं होता बट देन एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। इफ यू सी दिस कैन बी अ गुड रेजिस्टेंस एंड दिस कैन बी अ गुड सपोर्ट फॉर योर जोन। ठीक है। अब अगर मैं ये चार्ट में जाके देखूं टोरेंट फार्मा के, ठीक है, और आई कैन जस्ट राइट just search for the range bound pattern formation which is currently happening. It is range bound in GRSE। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्राइस अभी भी स्टिल कंसोलिडेट कर रहा है, बट जब भी अब ये सपोर्ट लेवल हो गया हमारा, जब भी ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा या तो फिर इस लेवल को जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसे वो ब्रेक कर रहा है तो वी कैन टेक अ गुड ट्रेड। अब अगर हम देखें कोई एक दूसरा पैटर्न जैसे दूसरा चार्ट, जैसे कि हम टोरेंट फार्मा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। ओके। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक अच्छा हमें जोन दिखने मिला रेंज बाउंड में। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक दो तरीके के ट्रेड्स जैसे मैं बताऊँ आपको तो दैट कुड बी इधर कि जहाँ जब यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट हुआ, ठीक है, उसके बाद ये एक उसने स्ट्रॉन्ग कैंडल क्रिएट किया, एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया, सो वी कुड टेक दैट एज अ सिग्नल एंड यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते थे जब भी कैंडल क्लोज हो रहा है, एक अच्छा बुलिश मूवमेंट दे रहा है। उसके बाद ये जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसे हम एक टारगेट के जैसे रख सकते थे यहाँ पे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट किया है हमने विद इन द रेंज बाउंड ओनली। अब जब भी द सेकेंड वे कुड बी कि जब भी ये दो पैटर्न, ये जो रेजिस्टेंस लेवल हो गया या फिर सपोर्ट लेवल हो गया, वो जब भी ब्रेक कर रहा है, अब फॉर एग्जाम्पल ये लेवल अगर ब्रेक करके उसके ऊपर एक क्लोजिंग दिया, एक अच्छा बुलिश क्लोजिंग दिया है, तो फिर हम उसमें एक ट्रेड ले सकते हैं एक्सपेक्टिंग अ गुड बुलिश मूवमेंट। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम देखें तो यहाँ पे आप एक
करंटली डाउनसाइड ट्रेड भी देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश पैटर्न फॉर्मेशन हुआ, बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है, एंड देन यहाँ से प्राइस वापस नीचे जा रहा है, सो इट कैन give a range bound again, so it can consolidate in this zone only, and यहाँ पे आप ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है उसे आप ये एक टारगेट के जैसे यूज कर सकते हो। एंड अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो जस्ट अबाउ द रेजिस्टेंस लेवल आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो, या फिर अगर आप डाउन अपसाइड के लिए देख रहे हो तो जस्ट बिलो द सपोर्ट लेवल आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हो, या इधर अकॉर्डिंग टू योर रिस्क मैनेजमेंट, लाइक वट एवर वर्क्स फॉर यू। ठीक है, and then if I see, I'll just go back to the PPT. This is what I can see कि यहाँ पे एंट्री हमें बाय नियर द सपोर्ट जोन मिल जाता है, जब भी हमें एक बुलिश सिग्नल एक्सपेक्ट कर बुलिश सिग्नल हमें मिल जाता है, एंड देन यहाँ से हमें एक अपसाइड मूवमेंट देख रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर हमें सेल के साइड पे देखना है ट्रेड, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेड्स देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है यहाँ से भी एक डाउनसाइड मूवमेंट हमें मिल रहा है, एंड देन यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक डाउनसाइड मूवमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे बोनस स्टॉप मिल जाता है हमें कि जब भी ब्रेकआउट मिल रहा है अबाउ दीज लेवल्स, द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर या नीचे, हमें जब भी एक बुलिश या बेरिश ब्रेकआउट मिल रहा है अच्छा खासा, तो तभी भी हम यहाँ पे एक न्यू ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बुलिश या फिर बेरिश। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड इन रेंज बाउंड कंसोलिडेशन पैटर्न। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें द लास्ट पैटर्न फॉर टुडे वुड बी बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग। अब this is not a consolidation pattern or not even a reversal pattern. This is basically a continuation pattern. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने ऑलरेडी एक मूव दिया रहता है अच्छा खासा, भले वो बेरिश हो या फिर बुलिश हो, एंड देन मार्केट कुछ दिन तक या फिर कुछ वीक्स तक इवन यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, एंड देन जब भी उस लेवल को ब्रेक करता है तो उसके बाद यहाँ पे आप एक अच्छा मूवमेंट देख पा रहे हो, जैसे कि अपसाइड के लिए हो गया या तो फिर डाउन साइड के लिए हो गया। अब अगर हम ये हमारे सॉफ्टवेयर में जाके देखें, ठीक है, we'll just go to the bullish flag। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से हम अगर देखें तो ये फ्लैग पोल हो गया हमारा, जो लेंथ है जो अपसाइड ट्रेंड है हमारा वो एक फ्लैग पोल हो गया, एंड देन जहाँ पे भी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है वो हमारा फ्लैग हो गया। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे ये एक पैटर्न कंप्लीट हो गया हमारा बुलिश फ्लैग का, जब भी प्राइस हमारा जो फ्लैग है उसको ब्रेक कर रहा है या फिर इसके इवन ये कैंडल के हाई को ब्रेक कर रहा है ना, एट दिस पॉइंट ऑल्सो यू कैन टेक अ ट्रेड एंड देन कीप योर टारगेट्स एज कि जब भी जितना ये जो फ्लैग पोल का लेंथ है या हाइट बोलो उतना ही आप यहाँ पे टारगेट रख सकते हो, या फिर इवन उसका 50% भी आप यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। भी सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो जुबलेंट फार्मा में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूवमेंट दिया, ये फ्लैग पोल हो गया हमारा, एंड देन प्राइस ने कंसोलिडेट किया यहाँ पे, एंड देन उसके बाद हम एक मूवमेंट यहाँ पे हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा जो टारगेट्स बोलो या स्टॉप लॉस बोलो, स्टॉप लॉस हमारा ये जो पॉइंट है जो प्रीवियस पॉइंट है फ्लैग का वो हम रख सकते हैं एज अ स्टॉप लॉस, एंड देन हमारा जो टारगेट है वो हमारा ये जो लेंथ है वो हम रख सकते हैं। ठीक है, HAL में भी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन फॉर्म हुआ है रिसेंटली। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी भी वो स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन कंटिन्यू कर रहा है, बट देन एक लाइक लिटिल बाय लिटिल एक अच्छा मूवमेंट देखने मिल रहा है, जैसे लास्ट ट्रेडेड डे में ही हमें 1.26% का एक मूव देखने मिला HAL में, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूवमेंट इन HAL ऑल्सो। अगर मैं बुलिश या बेरिश फ्लैग की बात करूँ तो हम थोड़ा पहले का जाते हैं, we'll just go back in the time frame and we'll see कि कहाँ पे एक bullish
या बेरिश फ्लैग इवन फॉर्म हुआ है। आई कैन सी करंटली कहीं पे फॉर्म हुआ है। अब ये आरईएल इंफ्रा है, विल सी आरईएल इंफ्रा ओवर हियर, जहाँ पे बहुत टाइम पहले एक्चुअली एक फॉर्म हुआ था। ओके, अब अगर हम आरईएल इंफ्रा में देखें, we'll just go back in the chart एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग फॉर्मेशन हुआ है, एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूवमेंट, देन उसने कंसोलिडेट किया एंड देन जब भी उसका अच्छा ब्रेकआउट मिला उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड मूवमेंट हमने नोटिस की। सो दिस इज अ विजिबल बेसिकली मूवमेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि how we can take a trade in bearish flag or even a bearish bullish flag. So ये price continuation यहाँ पे हमें बता देता है either like price reversal या फिर continuation consolidation नहीं, but एक price continuation। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्नल्स रख सकते हो या फिर एंट्री और टारगेट पॉइंट्स रख सकते हो। ठीक है, विल जस्ट गो बैक टू द पीपीटी। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा टारगेट है वो लेंथ ऑफ द फ्लैग पोल है। जो ये हमारा फ्लैग पोल है वो सिमिलर लेंथ रख सकते हैं, या तो इवन अगर आपको स्मॉल टारगेट्स चाहिए होंगे तो उसका 50% का भी आप यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, so before moving to the next slide, I'll just quickly launch a poll to just discuss whether volume could play an important role in this chart pattern formations. So let me know your views on this कि वॉल्यूम जो है वो हमारे चार्ट पैटर्न्स में एक अच्छा इंडिकेशन या एक अच्छा कंफर्मेशन दे सकता है या नहीं दे सकता। I can see that 92% of the audience has voted for yes. So the answer is yes. Volume does play an important role in chart pattern formations because जब भी हम एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, जब भी हमें एक ब्रेकआउट मिल रहा है, इफ वहां पे एक अच्छा वॉल्यूम नहीं है, इफ वहां पे एक अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं है मार्केट का, तो हम वहां पे एक अच्छा ट्रेंड या फिर एक अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बेसिकली। सो दैट इज व्हाट इट मीन्स। अगर हम देखें इन द नेक्स्ट स्लाइड तो यहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड कि व्हाई चार्ट पैटर्न्स कैन वर्क। सो बेसिकली अगर आपका एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट रहेगा या फिर एक आपका अच्छा बोलते ना वॉल्यूम रहेगा कैंडल का, या फिर आप कोई आपकी स्ट्रैटेजी होगी जो आप यूज कर रहे हो, फिर इंडिकेटर्स बोलो जैसे कि आरएसआई या सुपर ट्रेंड। आरएसआई भी एक अच्छा अगर एग्जिट कर रहा है फ्रॉम ओवरबॉट जोन और ओवरसोल्ड जोन, दैट कुड आल्सो बी अ गुड इंडिकेशन। और अगर आप सुपर ट्रेंड यूज कर रहे हो तो सुपर ट्रेंड अगर कट कर रहा है प्राइस को, तो दैट कुड आल्सो बी अ गुड इंडिकेशन कि आप वहां पे एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा खासा। ठीक है, सो द थिंग इज कि जब भी आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि जो हमारे पैटर्न्स है, चार्ट पैटर्न्स है, वो हमें एक फ्रेमवर्क देते हैं, बेसिकली स्ट्रक्चर देते हैं कि हमारा एंट्री कहाँ पे होना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, सिमिलरली टारगेट्स हम कैसे कौन से पॉइंट्स सेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अगर वॉल्यूम अच्छा रहेगा सो दैट कुड मीन कि ज्यादा ट्रेडर्स उसमें ट्रेड ले रहे हैं या फिर उसमें ज्यादा ट्रेड्स प्लेस हो रहे हैं, एंड देन दैट कुड क्रिएट अ सेल्फ फुलफिलिंग इफेक्ट कि हाँ एक अच्छा मूवमेंट मिल जा रहा है हमें यहाँ पे। अगर ब्रेकआउट लेवल के यहाँ पे ही हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल रहा है, फिर एक अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है, तो फिर एक डेफिनेटली हम एक अच्छा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहां पे। तो we can't use the chart patterns blindly just because कि वहां पे एक फॉर्मेशन हुआ है सो लाइक हाँ ट्रेड ले लेते हैं। वी कांट डू दैट। हमें यहाँ पे वॉल्यूम ध्यान में रखना पड़ेगा, ट्रेंड जो चल रहा है करंटली मार्केट का वो ध्यान में रखना पड़ेगा, देन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स जो होंगे उसके प्रीवियस लेवल्स होंगे वो भी हमें वी हैव टू कंसिडर दैट। और सिमिलरली अगर कोई न्यूज आ गई, कोई कुछ हो गया या न्यूज आ गई, कुछ टैरिफ्स लॉन्च हो गए, तो फिर उसके बेसिस पे भी हमें वो
वो भी एक कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि हाँ ये सब हुआ है, देन उसके वजह से मे बी it could fail. So that is also what we can keep in mind. So the bottom line is कि अगर हम उसे एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ कंबाइन करें, या फिर आपके जो कंफर्मेशन टूल्स हो गए, जैसे कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हो गई या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हो गई, वैसे ही वॉल्यूम हो गया, एंड देन आपके जो इंडिकेटर्स है वो एक कंफर्मेशन टूल्स की तरह एक्ट करेंगे आपके. अगर वो प्रॉपर रहे, वो भी एक अच्छा सिग्नल दे रहे हैं आपको, then we can definitely we can take a trade in the chart patterns over here. So that could be it. And Okay, before we sign off, I'd like to quickly thank Ms. Ria today for making it so simple for all the attendees. It has been insightful. You explaining us the chart patterns. Not to forget, you combine it with your risk management and your double confirmation. It will be a foolproof strategy for all the traders. Thank you very much for today. Thank you, attendees, and we're looking forward for more webinars from you, Ms. Ria. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone for attending this session. Thank you so much.